Welcome, my dear friends. Today, the topic is about normality of solution. It is denoted by capital N. So, what is normality? It's defined as the number of gram equivalents or we can say equivalences of solute dissolved per liter of solution. Number of gram equivalences of solute, number of gram equivalents, or you can say equivalences of solute dissolved per liter of solution. We call it normality. That is, N will be equal to, normality is equal to equivalences EQ divided by volume in liters. अगर आप वॉल्यूम ml में लिखेंगे, so you have to multiply it by 1000, so you are getting N equal to equivalences divided by so you will be getting equivalence divided by volume in ml multiply 1000. This is the required expression. So what is equivalence now? Equivalence we have already discussed in some basic concepts chapter, some basic concepts in chemistry. जो पहला वाला चैप्टर है 11th का, तो उसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है व्हाट इज इक्विवेलेंस. द लिंक हैज़ बीन प्लेस्ड इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप देख सकते हैं. सो आई विल गिव यू अ स्लाइट आइडिया ऑफ इक्विवेलेंस हियर आल्सो. सो इक्विवेलेंस जो है, इक्विवेलेंस दैट्स एक्चुअली इक्वल टू वेट divided by equivalent weight. Weight divided by equivalent weight is basically equivalence. Once you find equivalence, you put the value of equivalence here and you will get the normality. So for equivalence, you must be knowing equivalent weight. So how to determine equivalent weight? So we will write here how to determine the equivalent weight of any substance. So equivalent weight जो है हम ये नोट में लिखेंगे. So equivalent weight basically बराबर होता है gram atomic mass by F factor, or this for atom it's equal to gram molecular mass by F factor, and this is for the molecule. F factor, चूंकि atomic mass or molecular mass you know for any atom or for any molecule, so F factor is equal to, F factor is defined for any species. For example, for elements F factor बराबर होता है maximum charge, it's equal to maximum charge. For example, अगर आप लिखेंगे ऑक्सीजन तो F factor will be equal to 4. Why? Because ऑक्सीजन पे maximum charge -2 होता है. So -2 जब एक ऑक्सीजन पे है तो दो ऑक्सीजन पे कितना होगा? 4 होगा. यहाँ हम चार्ज की बात नहीं करते हैं. We only talk about the number. Similarly, अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो F factor will be equal to 6. कैसे? Because nitrogen is here, oxygen was O2 minus, so nitrogen is ON3 minus. जब एक ऑक्सीजन पे N3 माइनस है तो दो पे कितना होगा? 6 होगा. इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है F factor will be equal to 2. कैसे? Because एक पे चार्ज कितना है? H प्लस होता है, तो दो पे कितना होगा? 2 होगा. सोडियम पे कितना चार्ज है? सोडियम एक एलिमेंट है, उस पर 1 चार्ज होता है मैक्सिमम. मैग्नीशियम पे कितना होता है? दैट्स 2. सो इस तरीके से जो है आप F factor निकाल सकते हैं फॉर एलिमेंट्स. नाउ फॉर salts, if you just talk of salts, so F factor will be equal to total charge on cation. Total charge on cation. Total charge on cation. For example, अगर आपके पास NaCl salt है तो F will be equal to 1. क्यों? Because cation पे चार्ज कितनी है? 1 होती है.
अगर आप लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड तो F will be equal to 2. Why there will be F equal to 2? बिकॉज मैग्नीशियम में कितने चार्ज मैक्सिमम है, +2 है. इसी तरीके से AlCl3 अगर आप करेंगे तो F फैक्टर विल बी इक्वल टू 3. सिमिलरली फॉर अगर आप लिखेंगे फॉर एसिड्स तो F फैक्टर विल बी इक्वल टू बेसिसिटी, which means number of replaceable H plus ions. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे HCl की तो F will be equal to 1 because HCl gives only 1 H plus, so only 1 H plus is replaceable. अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे so 2 H plus can be replaceable, so F is equal to 2. अगर आप नाइट्रिक एसिड लिखेंगे तो only 1 H plus is replaceable, means N is equal to 1. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑक्सो एसिड्स लेंगे फास्फोरस के, फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, तो उनके लिए F फैक्टर जो है दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स -1. इस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे H3PO4 फास्फोरिक एसिड तो ऑप्शन कितने हैं, 4 है. 4 में से 1 काटो दैट इज 3. F फैक्टर इज इक्वल टू 3. सिमिलरली अगर आपके पास H3PO3 है फास्फोरस एसिड तो F फैक्टर किसके बराबर होता है फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स -1 मींस 3 - 1 is 2. एक और बात आपको याद रखनी है फॉर H3BO3 जो है उसके लिए F फैक्टर जो है दैट इज बोरिक एसिड 1 होता है. ये आप याद रखेंगे. सिमिलरली फॉर बेसिस F फैक्टर बराबर होता है एसिडिसिटी के, एंड दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस. ये F फैक्टर का सारा किस्सा जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है, तो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, द लिंक हैज़ बीन प्लेस्ड इन द डिस्क्रिप्शन, वो आप देख सकते हैं वहाँ. तो फॉर सपोज आपके पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट गिव्स ओनली 1 OH माइनस, सो इट्स F इज इक्वल टू 1. अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे इट गिव्स यू 2 OH माइनस आयन, सो F इज इक्वल टू 2. अगर आप लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 तो इट गिव्स 3 OH माइनस, F इज इक्वल टू 3. इस तरीके से जो है आप F फैक्टर निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर आप देखेंगे फॉर रेडॉक्स स्पीशीज F फैक्टर बराबर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4 है, ये कन्वर्ट होता है इनटू 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द मीडियम. अगर मीडियम H प्लस है मतलब एसिडिक मीडियम है तो कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में. अगर मीडियम है बेसिक तब ये कन्वर्ट होता है इनटू पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4. अगर न्यूट्रल होगा मीडियम इट कन्वर्ट्स टू MnO2. तो यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है F फैक्टर विल बी इक्वल फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +7 तो इसका कितना है +2, तो F इज इक्वल टू 5. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 7 - 2 इज 5. सिमिलरली यहाँ पे कितना चेंज होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ इट इज हियर +6 तो 7 और +6 मीन्स 1. सिमिलरली हियर यहाँ पे कितना चेंज आया ऑक्सीजन नंबर का, इतना इसका ऑक्सीजन नंबर +4 है तो 7 + 4 इज इसका 3 आएगा. सो चेंज आपको डिटरमाइन करनी है, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट in that particular redox reaction. We will get for redox species what the F factor. Similarly अगर आप देखेंगे K2Cr2O7 ये कन्वर्ट होता है इन एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में, तो 2 टाइम्स है ये बिकॉज Cr यहाँ पे 2 है तो F विल बी इक्वल टू कितना. देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो है दैट्स +6, एक का +6 है, दोनों का कितना होगा 12 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा +6 होगा, मीनस 6 विल बी द आंसर. सो F इज इक्वल टू 6 फॉर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉरी. इस तरीके से जो है आप F फैक्टर निकाल सकते हैं. वंस यू विल बी एबल टू फाइंड द F फैक्टर ऑफ एनी स्पीशीज, फिर देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली देन find the equivalent weight. You can then find the equivalent weight once F factor is determined.
equivalent weight you can find. Once you can find equivalent weight, you can find equivalence. Once you find equivalence, put the value here, you will get the normality of solution. इस तरीके से जो है आप इक्वलेंस निकाल सकते हैं. सो इक्वलेंस के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस. इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, ग्राम एटॉमिक मास फॉर एटम divided by a factor, or gram molecular mass for molecule divided by a factor, that gives you equivalent weight or equivalent mass. So f factor कैसे निकालेंगे for different species, I told you right now. So इस प्रोसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे, तो then you can find the normality of solution. So we will first of all go for certain problems, so then we'll switch on to some other thing. So question हम लेंगे यहाँ, question number 1 हम लेंगे यहाँ. So the question is, सपोज आपके पास है 5% NaCl सोल्यूशन या NaOH सोल्यूशन लिखेंगे. यू हैव 5% NaOH सोल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम पर ml. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड नॉर्मेलिटी. आपको बोला जाता है आप नॉर्मेलिटी डिटरमाइन करिए. सो आपको पता है जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी वो बराबर होता है इक्वलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई 1000. ये आपके लिए एक्सप्रेशन है. तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, इक्वलेंस आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड नॉर्मेलिटी. यू नो परसेंटेज जब भी दी हुई होगी तो यू कैन गेट 2 थिंग्स. नंबर 1 इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ NaOH कितना होगा यहाँ, दैट्स इक्वल टू 5 ग्राम्स. मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 100 ग्राम्स. ठीक, जब मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम्स आया तो आपको वॉल्यूम चाहिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी, बिकॉज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी. इसका मतलब वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. सो यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे वैल्यूज. मास 100 है सोल्यूशन का, डेंसिटी कितनी है सोल्यूशन की, 2 है, तो इट बिकम्स 50 ml. सो 50 ml आपका वॉल्यूम निकला. यहाँ इक्वलेंस किसके बराबर होता है, इक्वलेंस. नाउ इक्वलेंस इज इक्वल टू, इक्वलेंस बराबर होता है वेट डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट. तो वेट कितना है दिया हुआ है 5 ग्राम्स. सो 5 डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट किसका बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एफ फैक्टर. मॉलिक्यूलर वेट NaOH कितना होता है, दैट्स 40. एफ फैक्टर कितना है NaOH का, NaOH का एफ फैक्टर ये बेस है, इट गिव्स ओनली 1 OH माइनस, सो एफ फैक्टर इज 1. सो इस तरीके से 5/40 1/8 इज द इक्वलेंस. आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये, तो यू विल गेट द नॉर्मेलिटी, दैट इज n विल बी इक्वल टू 1/8 इक्वलेंस से होल डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना निकला आपको 50 ml मल्टीप्लाई 1000. तो इस तरीके से जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 100 डिवाइड बाय 40. तो ये और कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स 4 2s are 8, 4 5s are 12, 2.5 नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा आपको, 2.5 नॉर्मल सोल्यूशन. इस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे. सो पॉइंट टू बी नोटेड इज यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. अगर आपको मास दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द वॉल्यूम यूजिंग मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी. इक्वलेंस बराबर होता है वेट बाय इक्वलेंट वेट. वेट इज गिवन दैट्स हियर फ्रॉम परसेंटेज, एंड इक्वलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एफ फैक्टर. मॉलिक्यूलर मास जो है NaOH का दैट्स 40. एफ फैक्टर कितना फॉर बेस होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, सो इट गिव्स ओनली 1 OH माइनस आयन, दैट्स डिवाइड बाय 1, सो यू विल गेट इट 1/8. 5/40 मीन्स 1/8. इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अगर आपके पास नॉर्मेलिटी दी हुई है, सपोज 1, इट्स कॉल्ड नॉर्मल सोल्यूशन. इट्स कॉल्ड नॉर्मल सोल्यूशन. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी इन मोलैरिटी एज वेल एज दिस मोलैलिटी. सो इफ इट इज सपोज 1/10, देन इट्स कॉल्ड डेसी मोलर सोल्यूशन, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन. अगर आपके पास नॉर्मेलिटी दी हुई है 1/100, तो इट इज सेंटी मोलर, सॉरी नॉर्मल, इट्स नॉर्मल हियर, सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन. अगर आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है 1/2, then it is hemi-normal solution. The way we did it in molality case or molarity case, the same is true for the normality case. Now, before proceeding with another problems, let me tell you one more thing, that is relation between normality and molarity. रिलेशन बिटवीन N एंड M. देखिए आपको पता है, यू नो नॉर्मेलिटी बराबर होती है इक्वलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स
और मोलैरिटी जो है दैट्स इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। आप डिवाइड कीजिए इन दोनों को तो n बाय m विल बी इक्वल टू इक्वलेंस बाय वॉल्यूम इन डिवाइड बाय मोल्स by volume cancel, it will be equivalence divided by n. So this implies n by m will be equal to f factor because equivalence divided by n जो है that's equal to f factor. Equivalence divided by moles is equal to f factor. तो इसके बदले आपको f factor लिखा तो n by m is equal to f factor. f factor आप easily निकाल सकते हैं for different species. इसका मतलब ये हुआ जब f factor आपको पता है तो molarity will be given, n can be calculated. n will be given, molarity can be calculated. This is a very important expression or equation which will be used to find normality from molarity, molarity from normality. So let's have a look on certain problems. Question हम लेंगे यहाँ question number 2. Suppose आपके पास 1 molar, ऐसे लिखेंगे हम question, we'll write it in some other way, that is find normality of following solutions. Number 1 is 1 molar NaOH solution. Number 2 is 2 molar MgOH whole 2 solution. Number 3 is 5 molar H2SO4 solution. Number 4 is आपके पास है question that is 2 molar 2 molar H3PO2 solution. तो ऐसे करेंगे हम, आप देखिए 1 molar, देखिए आपको क्या निकालना है नॉर्मलिटी. सो नॉर्मलिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू एफ फैक्टर. दिस इंप्लाइज नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एफ. मोलैरिटी के ऊपर 1, एफ फैक्टर फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1 बिकॉज इट गिव्स ओनली 1 OH minus sign its base, so that's equal to 1. Similarly here n will be equal to molarity into f. Molarity किसके बराबर है 2, f factor is it gives 2 OH minus signs, so f factor is 2, it's equal to 4 normal. So 1 normal solution, 4 normal solution. यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मलिटी कितने निकलेगी, that's molarity into f factor, it gives 2 H plus ions, so multiply 2, that's 10 normal. इसी तरीके से नॉर्मलिटी यहाँ की निकलेगी, that is molarity into f factor. For oxo acids of phosphorus, f factor is equal to number of oxygens minus 1, that's 2 minus 1 is 1, that's equal to 2 normal. इस तरीके से जो है easily आप कैलकुलेट कर सकते हैं within seconds the normality of a molar solution. I hope you understand this. I hope you understand this. Few problems will take more. Question is find normality of following solutions. तो नंबर 1 है 2 molar MgCl2 solution. Number 2 is 4 molar H2SO4 solution. तो number 3 is 4 molar calcium carbonate solution. तो आंसर इज, देखिए यहाँ नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एफ. मोलैरिटी 2 है, एफ किसके बराबर है, इट्स अ साल्ट, टोटल चार्ज ऑन मैग्नेटिज्म विल बी 2, दैट्स 2 इज इक्वल टू 4 नॉर्मल. यहाँ आप देखिए मोलैरिटी इज 4 इनटू एफ फैक्टर. एफ फैक्टर कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का 2 है बिकॉज इट गिव्स 2 H प्लस आयंस, दैट इज 8. यहाँ पे आप देखेंगे 4 नॉर्मल मोलैरिटी है तो एफ फैक्टर कितना है 2 है बिकॉज कैल्शियम इज हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +2. चार्ज के +2 है बिकॉज इट्स अ साल्ट. फॉर साल्ट एफ इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज ऑन कैटाइन, दैट्स 2, दैट्स इक्वल टू 8. इस तरीके से आप इजीली डायरेक्टली बता सकते हैं व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ मोलर सॉल्यूशंस आर गिवन. सो इन द रिवर्स आल्सो, अगर आपके पास नॉर्मलिटी दी हुई है यू कैन फाइंड मोलैरिटी यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन दैट इज n by m is equal to f. Same expression, n by m is equal to f. I hope you understand this. If you find difficult, you can move the video forward and backward. Pause it many a times to watch it carefully, learn it carefully, and for the concept of equivalence as well as F factor, you can watch the video whose link has been placed in the description. Please do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.